Hello everyone. We are here again, sharp at 7, with one more guest speaker. She is one of the great personalities, a dynamic personality. But before introducing our personality to all of you, I would like to start this live session in a different but special way. As you all know, 26th July, today is Kargil Vijay Divas, and we all know the contribution of army in Indian history. So here I would like to quote a couple of lines before starting this session, and these lines are as follows. तू शहीद हुआ तो ना जाने कैसे तेरी माँ सोई होगी. तू शहीद हुआ तो ना जाने कैसे तेरी माँ सोई होगी. एक बात तो तय है, तुझे लगने वाली गोली 100 बार रोई होगी. एक बात तो तय है कि तुझे लगने वाली गोली 100 बार रोई होगी. अनडाउटेडली आप सभी इस कंट्रीब्यूशन को एग्री करते हैं. अनडाउटेडली आप सभी इंडियन आर्मी का जो कंट्रीब्यूशन है उससे एग्री करते हैं. तो आज के इस सेशन की शुरुआत हम इंडियन आर्मी को सैल्यूट के साथ करते हैं. So this is my way of paying my gratitude to all the people in the army working now, working in past, and will work in the future for the upliftment of our country. So here we invite Mrs. Amrita Dhanai, wife of Colonel Vivek Singh Dhanai. She is a dynamic personality. She is principal of Z Secondary School and worked at Army Public School Leh for 2 years and has a golden experience of 17 years in the teaching, and her forte is mathematics. So you can say she is a maths wizard. She can work like anything for mathematics, and her students still loves her a lot just because of her positive aura. So she has that positive aura that when you will be interacting, you will be listening to her, definitely the environment, the ambience is going to be, doubly positive. So here I welcome on this platform Mrs. Amrita Dhanai, a positive personality. Welcome Amrita ma'am on my platform, or I must say our platform, Antarman, making lives happier. And I really wish your contribution will definitely make a change in the people who will be listening to us. And yes, definitely, I am paying my gratitude to you to be here on this platform. Welcome, ma'am. नमस्कार प्रियंका मैम एंड थैंक यू. आपने इतने अच्छे वर्ड्स मेरे लिए यूज किए. थैंक यू सो मच. गुड इवनिंग, शब्बा खैर. एंड आप लोगों से बात करके संतरमन प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं उस चीज को व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ. आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड टू हैव यू एज अ फ्रेंड इन माय लाइफ, प्रियंका मैम. So, since here today we are going to give our attribute to Kargil Divas heroes. So we observe this memorable day, 26 July, as a Vijay Divas since 26 July 1999. And Priyanka ma'am, मैं इस 26 जुलाई 1999 की विटनेस रही हूँ, क्योंकि जिस समय ये हो रहा था मैं वहां पर मौजूद थी. यानी कि आई वॉज नॉट ऑन दैट प्लेटफॉर्म एक्चुअली, बट माई हस्बैंड वॉज अ पार्ट ऑफ विजय. So he was a part of that of Vijay operation. So I know each and everything, how our soldiers did on that wonderful platform, and I salute those brave hearts who sacrificed their life for their motherland. एंड इस प्लेटफॉर्म में जो पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, इसकी शुरुआत जो आपके साथ में करने जा रही हूँ इस सेशन में, मैं पूरे हिंदुस्तान की तरफ से हमारे उन जवानों के लिए कुछ लाइनें बोलना चाहूंगी. तो आपने जो किया हम उसे हमेशा दिल में बसाएंगे. आपने जो किया हम उसे हमेशा अपने दिल में बसाएंगे. जो लहराया तिरंगा आपने उसे ऊंचा करते जाएंगे. जो लहराया तिरंगा आपने उसे ऊंचा करते जाएंगे. ये जज्बा हर हिंदुस्तानी अपने दिल में रखता है. ये जज्बा हर हिंदुस्तानी अपने दिल में रखता है. वतन पर जान देने वालों के लिए हम सदा अपना शीश झुकाएंगे. वतन पे जान देने वालों के लिए हम सदा अपना शीश झुकाएंगे. तो
grand salute to our soldiers. With that, over to you, Priyanka ma'am. वाओ मैम, अमेजिंग वर्ड्स, अमेजिंग क्रिएशन। एक चीज मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी, मैम एक बहुत ही खूबसूरत पॉजिटिव पर्सनालिटी होने के साथ साथ एक बहुत ही उम्दा पोएटेस हैं, जो अपनी अपनी ये जो क्रिएशंस है पोम्स के थ्रू अपने शब्दों में जो ये एक मैजिक क्रिएट करती हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। तो जिस तरह से हमारा सेशन आगे बढ़ता रहेगा, इस जो मैम की इस कला के साथ भी आप सभी रूबरू होते रहेंगे, क्योंकि मैम कहीं ना कहीं इस पूरे सेशन को पॉजिटिविटी के साथ क्रिएटिविटी से भी एकदम लबरेज करने वाली है। तो यकीनन मैं मानती हूँ मैम कि ये जो आज का सेशन है, जो भी हमें सुन रहे हैं अभी या जो भी हमें बाद में सुनेंगे आफ्टर दिस लाइव सेशन, कहीं ना कहीं उनके अंदर जो एक नई ऊर्जा का संचार जरूर करेगा। तो मैम बहुत सी चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही एक अनूठी पहल है ये कह लीजिए, या एक अनुभव है मेरा कि आज जो कारगिल दिवस पर हम लोग आपके साथ जुड़े हैं, जो एक खुद वहां पे इन सारी चीजों को आपने देखा है, सुना है, और आपके हस्बैंड वहां पे विजय में खुद वहां थे, चश्मदीद हैं वहां के। तो बहुत ही खूबसूरत रहेगा आज का ये हमारा सफर, 1 घंटे का जो कॉन्वर्जेशन होगा, क्योंकि आज जिस दिन को हम लोग सभी मना रहे हैं, वो सारे जो हमारे जवान वहां पे उस दिन शहीद हुए थे, उन सभी की याद में जो हम 21 सालों से इस दिन को सेलिब्रेट करते हुए आए हैं। तो कहीं ना कहीं आज ये एक असल में एक वो होगा हमारी तरफ से, आई डोंट हैव द राइट वर्ड फॉर दिस, तो ये कहीं ना कहीं हमारी श्रद्धांजलि है उन सभी सोल्जर्स के लिए कि आज आप एक आर्मी पर्सनल होके, एक कर्नल की वाइफ, और पूरे देशवासियों तक जहां तक हमारा ये मैसेज जाएगा, एक पॉजिटिविटी को स्प्रेड करने वाला है। तो मैम जब हम बात शुरू कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी के साथ ही बात शुरू करेंगे। तो जब हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो हमें ये लगता है कि क्या जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहना, क्या जीवन में हमेशा सकारात्मक रहना मुमकिन है, और अगर हाँ तो किस तरह से हम अपने जीवन में सकारात्मकता को बनाए रख सकते हैं। Over to you, ma'am. Priyanka ma'am, as you know, as you all of aware, my friends who are listening me, कि मेरा नाम, my name is Mrs. Amrita Dhanai, and Amrita नाम का हिंदी में अर्थ है अमरता, अमृत। As per my name, I believe in spreading amrit in everyone's life, and I also believe that you create a positive aura surrounding you if you are in positive state of mind. You think positive, you do positive things, and with your personality aura, whosoever comes in your company also gets influenced by this positive magical aura. So always create that positivity. ये पॉजिटिविटी जो हम क्रिएट करते हैं और जो हमारे साथ जो हम चाहते हैं कि वो क्रिएट हो, वो हमारे अंदर मौजूद है। बस जरूरत है उसको पहचानने की कि वो कैसे और किस तरह क्रिएट की जाएगी, क्योंकि ये ऑरा बहुत खूबसूरत होता है। जैसे हम और आप मिले इसी ऑरा के थ्रू, और ये पॉजिटिविटी ही है जो हम और आप साथ में हैं, हमारी उस ऑरा की ही बदौलत हम लोग साथ में हैं। तो पहली चीज जो मैं बताना चाहूंगी कि पॉजिटिव थिंकिंग इज अ मेंटल एंड इमोशनल एटीट्यूड दैट फोकसेस ऑन द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ एंड एक्सपेक्ट पॉजिटिव रिजल्ट। तो किसी भी चीज में पॉजिटिव होने के लिए पर्सन को सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है मेक योरसेल्फ हैप्पी। हैप्पीनेस एक बिल्कुल, एंड ये हैप्पीनेस एक ऐसी चीज है, अगर वो आपके साथ है तो आप हर हालत में, कैसा भी आपके पास कैसा भी माहौल हो, कैसा भी आपके साथ लाइफ चल रही हो, आप हमेशा और हमेशा अपने आप को उस जगह से निकाल के लेके जाएंगे। तो आपने जैसे पूछा कि पॉजिटिव रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो माय फर्स्ट आंसर इज मेक योरसेल्फ हैप्पी, एंड फॉर बीइंग हैप्पी व्हाट यू कैन डू, लिसन टू योर इंटरनल डायलॉग। अंदर की बात सुनिए, अपने आप से बातें करिए, टॉक टू योरसेल्फ, खुद से बात करिए, खुद को पहचानिए, क्योंकि जो आप है वो सिर्फ आप जानते हैं कि आप क्या हो।
होइए मिरर के सामने, बोलिए हेलो, हाउ आर यू, हाउ आर यू डूइंग, सो व्हाट्स हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन, कैसी चल रही है जिंदगी दोस्त। बात करिए खुद से, क्योंकि जब आप खुद से बात करेंगे तो आपकी क्वालिटीज आपसे बात करेंगे, आप उन क्वालिटीज को इनहांस करेंगे, अपने टारगेट सेट करेंगे, अपने गोल सेट करेंगे और उन गोल्स को पाने की हर कोशिश करेंगे। So this is just a first step to get to be a positive person. And I also find motivation from inspirational quotes and messages to be very useful when trying to induce positive thoughts. आप कभी भी कोई पॉजिटिव थॉट्स पढ़ते हैं, पॉजिटिव मैसेज पढ़ते हैं, पॉजिटिव शब्द खुद में एक पॉजिटिव शब्द है, वो एक पॉजिटिव बिल्कुल। साइन लेकर आपके पास आता है, इट हैज प्लस साइन। सो ये आपके सामने उसी तरीके से आएगा जिस तरह आप उसको सोचेंगे। आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज को किस तरह और कैसे अपनी जिंदगी में इनकलकेट करना चाहते हैं। सो डिसाइड टू बी हैप्पी, दैट इज माय फर्स्ट मंत्रा ऑफ हैप्पीनेस। And interact with in positive environment and with positive people. मिलिए उन लोगों से जिनको आपको लगता है कि इनको सुनना अच्छा है, इनसे बातें करना अच्छा है, क्योंकि वो आपके अंदर पॉजिटिविटी लाके रख, आपको आपके अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे हैं। सो उनसे मिलिए। वॉलंटियर योरसेल्फ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू वॉलंटियर योरसेल्फ। कोई भी काम आप कर रहे हैं, वॉलंटियर करिए, क्योंकि मैंने बहुत जगह पे देखा है कि आप कोई भी आपके पास काम आया तो लोग पीछे हट जाते हैं कि नहीं हम क्यों करें, इट्स नॉट माय जॉब, लेट देम डू। नो, इफ सम वर्क हैज कम, वॉलंटियर योरसेल्फ। अगर आपको लग रहा है कि आप उस काम को बहुत अच्छी तरह से कर पा रहे हो, प्लीज आगे आइए। एंड बिलीव मी, वो आगे आके काम करने का जो सेटिस्फेक्शन आपके पास आएगा ना, वो आपको कोई और काम नहीं दे सकता। आपको अगर वो काम आता है तो सीखिए, उस काम को सीखिए और सीख के करिए, क्योंकि लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस। क्योंकि आप यहाँ पे अगर एक ठहरे पानी की तरह रह जाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो आपको सीखना भी जरूरी है, आपको आगे आना भी जरूरी है, और इन सब चीजों के लिए आप अगर आप देखिए अपनी जिंदगी को एक नजरिए से, तो छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना एक बहुत बड़ी बात है कि गेट प्लेजर आउट ऑफ द सिंपल थिंग्स इन लाइफ। बड़ी खुशियां तो बहुत मिलती है मैम, बहुत ज्यादा मिलती है और मिलती रहेंगी, सबको भगवान करे मिलती भी रहे, बट छोटी छोटी बातें जो डे टू डे आपके साथ हो रही हैं, बहुत जरूरी है उन खुशियों में जीना, उन खुशियों को महसूस करना और उन खुशियों के साथ अपनी पॉजिटिविटी बढ़ाना, अपनी खुशियों को बढ़ाना और दूसरों को भी खुश करना। क्योंकि अगर आप एक बहुत पुराना एग्जाम्पल मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी कि एक ग्लास है आपके पास जो आधा भरा हुआ है। नाउ दो थिंकिंग हो सकती, मैंने बोला आधा भरा हुआ है, और मैं ये भी कह सकती थी यहाँ पे कि वो आधा खाली है। बिल्कुल। तो खाली नहीं सोचना है, आपको उसे भरा ही रखना है, और जो आधा आपको दिख रहा है ना, आधा भरा है, उस आधे को आपने ही भरना है, because you are here to fulfill that task with your positivity, with your thoughts, with your parents' support, with your creativity, all of what you can do to achieve those things. You have to fill that glass with your own way, because you are a creator. Because you are a creator. So finally, जो भी आपके सामने आ रहा है जिंदगी में, रिजॉल्व करिए उसको, cheerful होके, क्योंकि एक स्माइल ऐसी चीज है जो हैप्पीनेस का एक स्रोत है। क्योंकि आप अगर एक स्माइल होके कोई काम करते हैं तो आपके साथ जुड़े हुए सारे लोग खुश हो जाते हैं। ओके, दिस पर्सन इज वेरी चेयरफुल पर्सन। और उसी काम को अगर आप उदास होके कर रहे हो तो डेफिनेटली आप अपने सराउंडिंग एरियाज को भी वही एनर्जी पास कर रहे हो। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव विथ your cheerful smile. Your smile is the best thing which you can't imagine कि आप क्या जादू कर सकते हो अपनी स्माइल से। और looking on the bright side is the most important when things go wrong. That is also very important thing कि अगर कुछ लगता है कि कोई ऐसी चीज ऐसी हो रही है जो आपको
नहीं चाहिए कि ये चीज नहीं आपके जिंदगी में होनी चाहिए, तो हर एक उस चीज का एक दूसरा पहलू भी होता है, या तो वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो आपको कौन सा देखना है? आपको पॉजिटिव ही देखना है, क्योंकि नेगेटिव देख के भी कुछ नहीं होने वाला, सिवाय आप अपने आप को उदास करेंगे, या अपने सराउंडिंग एरियाज, या अपने पेरेंट्स को, या अपने फ्रेंड्स को, या अपने बच्चों के साथ भी आप उदासी का माहौल क्रिएट करेंगे। अगर आप खुश रहेंगे, आप उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। फोकस माइंड, आपका दिमाग काम करेगा। कहते हैं ना, आप जब आप खुश होते हैं तो आपकी बॉडी की सारी मसल्स काम करना शुरू कर देती और बहुत ज्यादा आप फोकस्ड हो जाते हो ऐसे टाइम पे। तो अपने आप को फोकस बनाइए, स्माइल करिए, क्योंकि आपके साथ पूरा संसार हंसने के लिए खड़ा हुआ है। बस आपकी एक स्माइल चाहिए, सुंदर सी चेयरफुल स्माइल, जो इस पूरे माहौल को बदल देती है। एज यू आर स्माइलिंग प्रियंका मैम, बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने अपने शब्दों को इन ब्यूटीफुल वर्ड्स को पिरोया आई एम है। नॉट एबल टू लिसन द वॉइस। एम आई ऑडिबल नाउ? यस मैम, यस मैम। मैं कह रही हूँ मैम, बहुत ही खूबसूरती से आपने इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया है, वो कहीं ना कहीं हमारी जितनी भी ऑडियंस अभी तक हमसे जुड़ चुकी है, वो ये सुन के बहुत यस मैम, एम आई ऑडिबल नाउ? यस मैम, नाउ यू आर ऑडिबल। दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग मैम, कि बहुत ही खूबसूरती से आपने अपनी खूबसूरत स्माइल के साथ इस क्वेश्चन को आंसर किया है। यकीनन इस आंसर को सुनने के साथ साथ जो एक वाइब्रेशंस, एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो क्रिएट हो रही है हम सभी के मन में, हम सभी के दिमाग में, कि यस डेफिनेटली पॉजिटिव इमोशंस आर रियली मैजिकल। वो जो आपके बॉडी पे, आपके माइंड पे काम करते हैं, वो शायद ही कोई और चीज काम कर सकती है। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, मैं टोटली एग्री करती हूँ आपकी इस बात से कि जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे या हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, तब तक हम शायद किसी और को खुश नहीं रख सकते और किसी और का ख्याल भी नहीं रख सकते। तो जैसा कि आपने कुछ लाइंस ऐड करूंगी यहाँ पे कि मुझको मेरे वजूद की हद तक ना जानिए, मुझको मेरे वजूद की हद तक ना जानिए, बेहद हूँ, बेहिसाब हूँ, बेइंतहा हूँ मैं। तो दिस इज लव योरसेल्फ बिकॉज यू आर यू, और जो कोई और नहीं हो सकता। तो अपनी पहचान, अपने को पहचानिए और अपनी पहचान को दुनिया के सामने लाइए। बहुत बहुत खूबसूरत लाइंस के साथ आपने बहुत सिंप्लीफाइड वे में लविंग योरसेल्फ का एक सेट एग्जाम्पल दिया है। बहुत ही सुंदर लाइंस है। मुझे लगता है कि सभी व्यूअर्स को ये लाइंस बहुत पसंद आने वाली है और वो कहीं ना कहीं लिखने वाले हैं इन लाइंस को और यूज करने वाले हैं अपनी जिंदगी में। लविंग योरसेल्फ के बाद जो आपने बात किया है इनर डायलॉग की, मोनोलॉग की, जो हम खुद से ही खुद से बात करते हैं, और कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम जो खुद से सेल्फ कॉन्वर्जेशन होता है वो नेगेटिव होता है। तो हमें इस पर अवेयर रहना है। देखिए मैम, जैसा कि मैंने क्वेश्चन की शुरुआत किया है कि हमें हर समय पॉजिटिविटी में नहीं रह सकते। जिंदगी है और जिंदगी संघर्ष का दूसरा नाम है। अगर जीवन है तो सुख और दुख दोनों होंगे। हम कतई ये नहीं कह सकते कि जीवन है तो सिर्फ सुख ही होगा और जीवन है तो सिर्फ दुख होगा। सुख और दुख दोनों हैं, एक साइकिल के दो पहिए के समान है। दोनों अपनी अपनी स्पीड पर चलेंगे तभी जीवन समान चल सकता है। बट मेरा एक ही चीज के साथ यहाँ एक मैसेज आपके शब्दों के साथ ऐड करने का है कि जब भी जीवन में कोई भी नेगेटिविटी हो, जब भी जीवन में कोई लो फेज चल रहा हो, तो सबसे बेहतरीन काम जो हम सभी को करना है, उस मोमेंट को, उस इमोशन के प्रति अवेयर रहना है और उसको एक्सेप्ट करना है। हम कई बार अपने जीवन में जो नेगेटिव सिचुएशंस आती हैं, या तो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं या हम डिनाई करते रहते हैं कि नहीं ये मेरे साथ नहीं हो सकता, या फिर हम कहेंगे मेरे साथ ही क्यों हुआ। देखिए, सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो उनके हिसाब से नेगेटिव है। अगर हम किसी राउंड टेबल पे बैठे हैं और 5 लोगों को बिठाएं और उन्हें कहें कि आप अपने अपने दुख शेयर करिए और हो सके तो एक्सचेंज कर लीजिए, तो मेरा ये मानना है मैम, यकीनन वो पांचों अपने अपने दुखों के साथ ही उठेंगे। वो पांचों अपने अपने जिंदगी में जो नेगेटिविटी चल रही है उसके साथ ही उठेंगे, क्योंकि उस समय उन्हें ये रियलाइज होगा कि मेरे ही नहीं सभी के जीवन में कुछ कुछ तो ऐसा चल रहा है जो कि नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव नहीं है, जो कि एप्रोप्रिएट नहीं है। तो सबसे मेरा एक ही आपके शब्दों को एक ही तरह से जोड़ना है
कि जो भी नेगेटिव मोमेंट हमारी जिंदगी में आया है उसके प्रति सजग रहिए, उसको एक्सेप्ट करिए और कोशिश करिए एडजस्ट करके और उस मोमेंट से ऊपर आने की। और जिस तरह से आपने एग्जाम्पल दिया कि रुका हुआ पानी भी अच्छा नहीं लगता है, रुके हुए पानी में से भी गंदी बदबू आने लगती है, उसी तरह अगर हम एक इमोशन के साथ एक जगह पे रुक गए, स्टक हो गए, तो हमारी जिंदगी भी वैसी ही होने वाली है जिस तरह से रुका हुआ पानी हो जाता है। वो ना किसी काम का रहता है और ना किसी को अच्छा लगता है। तो एक ही जिंदगी का फलसफा हम सभी को समझना है पॉजिटिविटी के इस सेशन के थ्रू, कि हमें बहते रहना है पानी की तरह, रुकना नहीं है। चाहे जीवन में नेगेटिविटी आए, उसके प्रति सजग रह के, उसको एक्सेप्ट करके, उसके साथ थोड़ा सा एडजस्टमेंट बिठा के चलते रहना है, क्योंकि अगर दिन है तो रात होगी और रात है तो फिर से सुबह होगी। और जो खुशियों की आपने बात कही है, तो उनके आगे मैं 2 लाइन्स ही जोड़ना चाहूंगी कि जीवन में खुशियों को ढूंढने से बेहतर है खुशियों में जीवन ढूंढा जाए, क्योंकि खुशियां कहीं ना कहीं हमारे अंदर है और हम कहाँ ढूंढ रहे हैं, बाहर। जिस तरह से एक व्यक्ति अपने घर के बाहर कुछ ढूंढ रहा होता है और कोई आके पूछता है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो भाई, कि मैं कुछ चाबी ढूंढ रहा हूं, तो चाबी गुमी कहाँ थी, तो बोले घर के अंदर गुमी थी। तो घर के अंदर ढूंढो ना, बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? तो बाहर रोशनी है इसलिए ढूंढ रहा हूँ, घर के अंदर रोशनी नहीं है, तो रोशनी लगाई जलाइए और उसको वहीं ढूंढिए जहां वो खोई है। तो हमारे अंदर ही वो चीज है जिसे हमें ढूंढना है और बाहर लाना है। और आप जैसे अगर खूबसूरत व्यक्तित्व तो हमारे साथ हैं, तो डेफिनेटली हम इन नेक्स्ट 45 मिनट्स में उसे फटाफट ढूंढ लेंगे। मैम आपने संघर्ष की बात कही, तो कुछ संघर्ष के लिए मैं बोलूंगी कि जब तक जीवन है तब तक संघर्ष, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है ना। जब संघर्ष ना हो तो तकलीफ के बिना जीने का मजा क्या है? जी बिल्कुल मैम, सुख के बिना दुख का एहसास नहीं है, दुख के बिना हम सुख का एहसास नहीं कर सकते हैं। नहीं और कर यहाँ सकते। मैम काफी लोग जुड़े हैं मैम, हम उन सभी को गुड इवनिंग कह देते हैं। यस मैम। तो काफी लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर जेके अरोरा हमारे साथ हैं, ही रियली एडमायर्स योर कोट्स, योर पॉजिटिविटी, सो ही इज सेइंग गुड इवनिंग टू यू। Mrs. Anjali Mishra is with us. I think she is a great fan of yours. So she is saying you always motivates and enhances our confidence. And Anita Chaudhary is also with us. Good evening, ma'am. So Sevang Dolma is with us, ma'am. So he's my student, ma'am. He's my student. Yes. So very inspiring words for you. So next is Sanat Vinod. Some Kishan Arora is also saying, I love myself. Wow, that's the best thing we can say to ourselves. So Yamini Vyas is with us and she's saying, wow, amazing lines, ma'am. So everybody is getting inspired by you, ma'am. So this is really beautiful evening that you are with us. And one thing I would like to tell you, all my viewers, the beautiful personality in red sari who is sitting with us with the beautiful mehendi on her hands, this is her anniversary. So on this social platform, I'm wishing Amrita ma'am a very happy anniversary, ma'am. So this is a beautiful coincidence that ma'am has accepted this invitation on this platform on my page on this special day. तो thank you so much ma'am कि आपने अपने इस खास दिन में भी थोड़ा सा समय हमारे लिए निकाला. So ma'am इतना तो wishes. Okay ma'am, so we move forward to our next question because our audience are eagerly waiting for listening from you. Yes, ma'am. So definitely I have this question in my mind and I will definitely I am eager to listen this thing from your side. What are the effects of positivity on our physical health? As we all know, positivity keeps our mind very healthy, but how it can affect our physical health, ma'am? So please throw some light on this. Yeah, ma'am, definitely positivity is, अगर आप positive रहते हैं तो definitely आप बहुत ही ज़्यादा cheerful रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा cheerful रहते हैं, और आपके जो surrounding areas हैं या जो आपके friends हैं या जो आपकी सर्कल है वो भी अपने आप में ही एक अलग ही माहौल बना देती है। तो जब आपको लगता है कि आप नेगेटिव हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर एक नेगेटिविटी आपके अंदर आ रही, कभी मान लीजिए अगर आपको फील हो रही है, तो आप कैसा फील करते हैं? फर्स्ट आई वांट टू लिसन इट फ्रॉम यू।
Okay, ma'am. Very true. This is something, if we are thinking negative, definitely some of our body part is also not feeling well. I truly Very correct. agree to this thing. I totally agree with this thing that our mindset, our mental health directly relates to our physical health and vice versa. Our physical health directly relates to our mental health. If we So are some, not at, yeah, ma'am. yeah, yeah, ma'am. You please continue, ma'am. Then after that, I will add. This is what I'm saying, ma'am. These days, when we are facing this COVID-19 Right. pandemic, so this is something I request everybody who is listening, who are listening to us. जिस तरह से आप फिजिकल इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, इन दिनों में हमें कई तरह की चीजें मेडिसिन के थ्रू या कोई भी सिरप्स के थ्रू कही जा रही है कि हमें अपनी फिजिकल इम्यूनिटी को बूस्ट करना है. तो सिमिलरली वी हैव टू इंक्रीज आवर मेंटल इम्यूनिटी एज वेल. एंड मेंटल इम्यूनिटी के लिए मैम देयर इज नथिंग बेस्ट देन दिस पॉजिटिव इमोशंस. Psychology always believes in the positive emotions, and the happiness starts from the positive emotions. So I totally agree that there is a direct connection between the mental health and the physical health, the positivity and the physical health. So over to you, Okay. ma'am. So, ma'am, in the continuation of that, when you feel negative, when you have a negative aura surrounding you, then you feel like that restlessness, sleepiness, nervousness, headache, stomach ache, and heavy breathing, confusion, sudden mood swing, anxiety. So ये सारी चीजें सिम्टम्स है कि आपके अंदर नेगेटिविटी इन्वॉल्व हो रही है. सो अब हमें जरूरत है कि उस नेगेटिविटी को अपने आप से पहले दूर करना, क्योंकि ये नेगेटिविटी जब तक दूर नहीं होगी आपका हेल्थ कैसे इंप्रूव करेगा. अब प्रॉब्लम ये है कि वो नेगेटिविटी दूर कैसे हो, क्योंकि नेगेटिविटी होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं. पहली बात तो आपको आपकी मनचाही जॉब नहीं मिली, आप ये करना चाहते थे मगर वो नहीं कर पाए, और जो आपने सोचा जिंदगी में वो चीज आपको नहीं मिली. सो पहली चीज तो ये है कि अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव होना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहली बात है कि आप अपना एक पॉजिटिव सपोर्ट ग्रुप तैयार करें, जिस ग्रुप में आपको उस टाइप का एटमॉस्फेयर मिले जो आप जैसा चाहते हो, उससे रिलेटेड आपको गाइडेंस मिले, उससे रिलेटेड आपको डायरेक्शंस मिले. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट दैट टाइप ऑफ ग्रुप. देन express what you are grateful for. आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो उस चीज को एक्सप्रेस करिए, क्योंकि लोगों की आदत है हर चीज को आप रिस्पेक्ट करते हो मगर आप रिस्पेक्ट जताते नहीं. तो उसको एक्सप्रेस करिए, उसको एक्सप्रेस करना सीखिए और अपने दिमाग को रिट्रेन करिए. रिट्रेन योर माइंड इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन. जो सोच रहे थे मे बी वहां कुछ कमी रही होगी, वहां कुछ कमी रही होगी तभी ये कंडीशन आई. तो उस सोच को बदलिए, उस तरीके को बदलिए और उस नए तरीके से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाइए. आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और उसके बाद मेडिटेशन कर सकते हैं. देन एक्सेप्ट एंड फाइंड सॉल्यूशन, एज यू आल्सो सेड द सेम थिंग. एक्सेप्टेंस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज लोग अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते. वो एक बहुत बड़ी कमी है लोगों के अंदर कि अगर आपसे गलती हो भी गई, मान लीजिए कोई गलती हो गई है या कुछ आपने गलत कर दिया है जिसकी वजह से, क्योंकि आपके सामने जो नेगेटिव सिचुएशन आई है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप उसमें जरूर रीजन हो, क्योंकि बिना उस रीजन के तो ये सिचुएशन नहीं क्रिएट हुई है. तो उस नेगेटिविटी, उस सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए भी आपकी जिम्मेदारी रही है कहीं ना कहीं. तो उस चीज को एक्सेप्ट करिए. अगर आपने कुछ गलती की है तो उसको एक्सेप्ट करिए, बिकॉज इट इज नॉट अ वेरी बिग डील. एक्सेप्ट करिए और एक्सेप्ट के बाद उस गलती को पहचानिए, उस गलती को सुधारिए और आगे बढ़िए. एक बहुत अच्छी पोएम है मेरे सामने कि किसी के कि पथिक जो दूर कर ले गलती को उसे इंसान कहते हैं. इसकी फुल लाइन में बोलना चाहूंगी कि ये यूं दुनिया में गलती सभी करते हैं, बट पथिक जो ठीक कर ले गलती को उसे इंसान कहते हैं. सो हम भी इंसान हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग्स. हम गलती करेंगे, गलती सुधारेंगे और गलती सुधार के आगे बढ़ेंगे. और बिलीव मी प्रियंका मैम, जब हम अपनी उस गलती को सुधार के एक नए अंदाज में अपने आप को इस दुनिया के सामने पेश करेंगे, वो पॉजिटिविटी, वो कॉन्फिडेंस ऐसा होगा ना कि लोग देखते रह जाएंगे. और वो एक दिन होगा कि जब आपकी जो मेंटल हेल्थ
या जो बॉडी, जो फिजिकल हेल्थ डाउन हो रही थी, immediately you feel like that, wow, what I did. You feel stress relief. You will increase Wow. your immunity, improved wellness. You will become a wonderful person on the same day. So nice, ma'am. Really very inspiring, very very inspiring. आपने जो जो शब्द यूज किए हैं, लगता है कहीं ना कहीं सबकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं. जिंदगी में अगर कभी भी गिरे और फिर दुगने जोश के साथ उठें, तो उसी को पॉजिटिविटी कहते हैं, उसी कॉन्फिडेंस को हम पॉजिटिविटी कहते हैं. तो मैम, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी, क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा रियल एग्जाम्पल आप यहाँ पे हम सभी के साथ शेयर करना चाहेंगे, जिसमें आपके साथ कुछ ऐसा नेगेटिव था बट फिर भी आपने अपने अंदर की पॉजिटिविटी को हमेशा जिंदा रखा, हमेशा उसको बनाए रखा, और जब आप उस नेगेटिविटी से बाहर आए तो यू वर अ डिफरेंट पर्सन, अ मोर ट्रांसफॉर्म, मोर पॉजिटिव, मोर प्रोडक्टिव पर्सन? See, Priyanka ma'am, yes, of course, everybody has this type of event in their life, and I also have. And it happened in 1994. It happened in 1994. That time I lost my father, and he was my great inspiration. बहुत प्यार करते थे हम, और डेफिनेटली सभी करते हैं. He was my mentor basically. He was my mentor. And उनको उनसे अलग होने के बाद भी उनका एक बहुत ही परफेक्ट रीजन था कि जो करो, मेरा एक निकनेम है रिंकी, तो मुझे कहते थे कि रिंकी जो करो उसमें अपना 102% देना, 98 99 नहीं सोचना है, 102% देना है, और ऐसा करना कि अगले को उसमें कोई भी गलती ना मिले. दैट ये चीज मेरे पापा ने मुझे सिखाई है, और उसी चीज को मैं फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही हूँ. और मेरे पापा को बहुत कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर. जब वो इस तरह अचानक से हमसे दूर हो गए, तो मैंने खुद से एक प्रॉमिस किया कि जो मेरे पापा ने मेरे लिए सोचा है, आई विल डू द सेम थिंग. ही वॉज माई एनर्जी सोर्स, एंड आई विल रिक्रिएट दैट एनर्जी फॉर माई सेल्फ, फॉर हिम. आई विल रिक्रिएट दैट. जो वो मुझे देखना चाहते थे फ्यूचर में, मैं वो बन के दिखाऊंगी. और मैंने भगवान की दया से ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता चला गया, या उनकी ब्लेसिंग्स हैं जो वो ऊपर जाके उन्होंने मेरे को शावर करी, कि मेरे साथ सब चीजें होती चली गई, और मैं आज आपके सामने से बैठी. So I motivated myself with my father's guidelines. And मेरी मम्मा भी एक चीज बोलती है कि बेटा, प्यार दोगे प्यार पाओगे, दुगने ब्याज के साथ आपको मिलेगा प्यार. So आप प्यार बांटिए, बहुत प्यार मिलेगा आपको. बिल्कुल सही कहा मैम आपने, और मैं भी आपके इन्हीं सारी चीजों के साथ बिलीव करती हूँ. जैसे कि आप कहते हैं कि आपकी फादर की ब्लेसिंग्स है आपके साथ, और आपने उन ब्लेसिंग्स को उतना आगे तक ले जाके, और आज आप सेल्फ मोटिवेशन के साथ वाकई में बहुत लोगों को इंस्पायर कर रही हैं. और मेरा भी ऐसा ही मानना है कि हमारी सोच से ही हमारी सृष्टि का निर्माण होता है. जैसा कि हम सभी ने सुना भी है कि सोच बदलने से सितारे बदल जाते हैं. तो अगर हम हमारी सोच को उस तरह से सकारात्मक रखें, पॉजिटिव रखें, कितना भी कठिन समय हो, अगर हम ये मान के चलें कि ये भी गुजर जाएगा. अकबर बीरबल की बहुत ही सुंदर कहानी है, जिसमें अकबर बीरबल को कहते हैं कि कुछ एक ऐसी लाइन लिखो कि मैं दुख में पढ़ूं तो मुझे इतना दुख ना लगे, और मैं सुख में पढ़ूं तो मुझे घमंड ना हो. तो बीरबल ने एक सिंपल सी लाइन लिखी, ये वक्त भी गुजर जाएगा. कि आप दुख में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये भी गुजर जाएगा, क्यों हमेशा दुख में रहना है, ये निकल जाएगा. Everything is temporary. Yes. It's temporary. It will come and go. मैम. और सुख में पढ़ें तो हमें हमेशा एक धरती से जुड़े हुए रहें कि नहीं, हमें प्राउड नहीं करना है, ये जो जितनी सारी चीजें हमें मिल रही है ये भी हो सकता है गुजर जाएंगी, तो हमें ग्राउंडेड रहना है. एंड ग्राउंडेड रहना मैम बहुत जरूरी है. पॉजिटिविटी विद ग्राउंडेडनेस अगर एक साथ मिल जाए तो डेफिनेटली वो इंसान सक्सेस की टॉप मोस्ट सीढ़ी को चढ़ता है, और जो वो एपिटोम ऑफ सक्सेस को महसूस करता है, यकीन मानिए उससे बेहतरीन जिंदगी में कुछ चीज हो ही नहीं सकती. तो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर ऑल दीज थिंग्स व्हिच यू आर शेयरिंग विद ऑल ऑफ अस. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 लाइनें आपके इन्हीं लाइनों पे मैं शेयर करना चाहूंगी. जरूर मैम, जरूर, हम सुनना चाहेंगे. बिकॉज जब भी आप खुद को मोटिवेट करते हो तो उसके लिए कुछ लाइंस बहुत जरूरी होती है, क्योंकि आप कहीं कुछ पढ़ते हो, खुद को तैयार करते हो,
खुद को मोटिवेट करने के लिए जो करना चाहिए, मैं कुछ टिप्स हैं जो आई वांट टू शेयर इन दिस प्लेटफॉर्म। श्योर मैम। अपने आप को ऑर्गेनाइज करिए, ऑर्गेनाइज करिए। जो आप इमेजिन कर रहे हो उसको लिख के उसको बिलीव में कन्वर्ट करिए। जो आप इमेजिन कर रहे हो चीजें कि ये मेरे को करना है, उसको लिखिए, एक डायरी में उसको मेंशन करिए। एंड बिलीव मी, जो आप सोच रहे हो वो डायरी में आने के बाद वो सच हो जाएगी, क्योंकि उसको लिखने के बाद यूनिवर्स इज वर्किंग फॉर यू। उसने अपना काम शुरू कर दिया है, यूनिवर्स हैज स्टार्टेड वर्किंग फॉर यू। तो वो यूनिवर्स ने आपका आपके अंदर जो चीजें चल रही हैं, क्योंकि अभी तक वो आपके दिमाग में थी, आप उसको इमेजिन कर रहे थे, जब आपने उसको एक जगह उसको लिख दिया तब वो एटमॉस्फेयर में आ गई। तो अब उसके लिए यूनिवर्स ने तैयारी शुरू कर दी। वो यूनिवर्स आपको, और बहुत खूबसूरत चीज है, शाहरुख खान की मूवी का था, किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की कोशिश करने लगती है। सो ये आपके अंदर है कि आप उसको किस तरह से पाना चाहते हो। ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, प्लान एवरी एक्टिविटी, प्लान करिए अपने आप को, कैसे, किस तरह, कहाँ, और अगर कुछ हो रहा है तो लिखिए। मैं बहुत इंपॉर्टेंट कि लोग सोचते हैं क्यों वो लिखना, बट लिखना, बिलीव मी, इट वर्क्स। It really works. It really works, ma'am. I do believe in each and every word of yours. जैसा कि आपने यूनिवर्स की बात कही है, मेरे फादर हमारे साथ यहाँ पे लाइव सेशन पे ज्वाइन है, हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में यही ख्याल चल रहा है कि जो मैम कह रही है उनकी बेटी उन सब चीजों को बहुत 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 फॉलो करती है। मेरे लिए भगवान के नाम पे यूनिवर्स है, मैं हमेशा यूनिवर्स को इतना फॉलो करती हूँ। और यूनिवर्स की एक सबसे अच्छी खास बात है कि यूनिवर्स के ऊपर विश्वास करके देखिए, यूनिवर्स सब कुछ देता है। और जो आपने लिखने की बात कही है, डेफिनेटली इट वर्क्स 200% मैम। जो भी आपके मन में विचार चल रहे हैं, अगर आपने उन्हें लिख दिया, अपने शब्दों में पिरो दिया, 101% वो सारी चीजें आपकी जिंदगी में अगले ही दिन से सक्सेस होना शुरू होने वाली है। बिकॉज पावर ऑफ विजुअलाइजेशन हमेशा 3 चीजें कहता है, आस्क, बिलीव, रिसीव। पहले तो मांगिए, फिर विश्वास करिए, और फिर देखिए वो जो अब देगा ना तो छप्पर फाड़ के देगा। बट 2 ही चीजें करनी है मैम, उसको बोलना है, उससे मांगना है, और उस पर विश्वास करना है, और हमें कर्म भी करना है। एग्जैक्टली मैम, सिर्फ मांगने से कुछ नहीं मिलता है ना, हमें कर्म करना पड़ेगा। अगर किसी दिन मैंने ये सेशन के लिए एक डायरी में लिख दिया होता, आई विल हैव सेशन विद अमृता मैम, राइट, एंड आई विल नॉट गिव एनी एफर्ट्स टू इट, तो बताइए क्या ये मुमकिन होता? नहीं होता मैम। यूनिवर्स तभी काम करता है जब हम काम करते हैं। वो हमारा गाइडलाइन बन सकता है, वो हमारी गाइडिंग लाइट बन सकता है, पर काम तो हमें ही करना पड़ेगा। कर्म से ही हमें सारी चीजें प्राप्त होती है, कर्म से ही खुशी मिलती है, और कर्म से ही हर पथ पर सक्सेस मिलती है। मैम, जिस तरह से हम पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, तो मैंने कईयों से ये चीज सुनी है कि सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, सराउंड योरसेल्फ विद दोज पीपल जो आपको अच्छा फील कराएं, जिनकी वजह से आपका माइंडसेट अच्छा रहे। पर मैम, क्या ऐसा है कि हमारी जिंदगी में देखें मैम, हर इंसान पॉजिटिव हो ऐसा जरूरी नहीं है। हम जहां काम करते हो, हमारा जो वर्किंग एटमॉस्फेयर है वो हमेशा पॉजिटिव हो जरूरी नहीं है। तो क्या ऐसी चीज की जाए जब हम कहीं हों और हमारे आसपास नेगेटिव लोग हों, तो किस तरह से हम अपने आप को उन सभी नेगेटिव लोगों की नेगेटिविटी से बचा के रख सकें? तो मैम, कुछ थोड़ा सा टिप्स इस बारे में आप दीजिए प्लीज। यस मैम, डेफिनेटली। जब आप कहीं जाते हो तो आपको कई तरह के लोग मिलते हैं। कुछ आपके ट्यूनिंग से मैच कर रहे होते हैं, कुछ की ट्यूनिंग आपसे मैच नहीं करती है, तो उनको हम अपने नजरिए में नेगेटिव पीपल मान लेते हैं, जबकि वो नहीं है। क्योंकि वो नेगेटिव इसलिए है क्योंकि वो मेरे अकॉर्डिंगली नहीं चल रहे हैं। सो आई एम थिंकिंग कि दे आर नेगेटिव, एंड हु आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू मी, आई एम थिंकिंग दे आर पॉजिटिव। बट ऑफ कोर्स कुछ होते हैं लोग मैम जिनके साथ रहकर आपका अपना ऑरा भी बिगड़ने लगता है। तो उस टाइम के लिए मैं बस यही कहूंगी कि डोंट बाय नेगेटिविटी फ्रॉम देम। आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो खूबियां हैं, आपका जो ऑरा है, उसको मेंटेन करके रखिए, उसको बैलेंस करके रखिए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप हर समय पॉजिटिव लोगों के सराउंडिंग में ही रहें।
आपके साथ मिलेंगे कुछ लोग, एंड आपको उस समय अपने फिल योर माइंड विद पॉजिटिव इनपुट। अपने दिमाग में उनकी नेगेटिविटी हावी मत होने दीजिए, अपनी पॉजिटिविटी से उनको इन्फ्लुएंस करिए कि वो अपनी नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव करें, बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ यू। सो जब कभी ऐसा होता है तो क्या हो जाता है कि एटमॉस्फेयर ऐसा बन जाता है कि आपकी सोच, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका सब कुछ उस माहौल में धीरे धीरे ढलने लगता है, और फिर आप सोचते हो ये तो मैं नहीं हूँ जो यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको उस समय करना क्या है? सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है कंट्रोल योर लैंग्वेज एंड टंग। ब्यूटीफुल। सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि अपनी लैंग्वेज, जो आप अपनी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, इट शुड बी वेरी हम्बल, रिस्पेक्टिव लैंग्वेज। जो आप भाषा बोल रहे हो वो बहुत ही ज्यादा सौम्य होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि किसी के दिल को छू के चली जाए, दिल उसका तोड़ के चली जाए, क्योंकि वो माहौल एक उस टाइम के लिए बना है, बाद में वो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, पर जो आपने बोल दिया वो निकल चुका है आपके जुबान के तीर से। सो कंट्रोल योर लैंग्वेज एंड टंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज आप पॉजिटिव हो, बहुत पॉजिटिव हो, बट उसको क्रिएट करने की भी जरूरत है, क्योंकि अगर आपने वो चीज कर दी फिर हो गया, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, वो निकल चुका है आपके तीर कमान से। बिल्कुल। देन बी नाइस विद अदर पीपल। अगर वो कुछ गलत कर भी रहे हैं तो ये सोच लीजिए कि मे बी उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो यहाँ पर इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। हमारे एजुकेशन फील्ड में ये बोला जाता है कि अगर कोई बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं रहा है तो आप उनके बैक में जाके देखिए, उनका फैमिली बैकग्राउंड चेक करिए कहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो वो बच्चे की प्रॉब्लम है या टीचर की प्रॉब्लम है, वो उसके बैकग्राउंड की भी प्रॉब्लम हो सकती है। मे बी उसको घर में वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा हो जैसा उसे मिलना चाहिए। So, जब सेम थिंग गोज विद योर वर्किंग पीपल ऑल्सो, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आपके साथ बातें कर रहे हैं, हो सकता है वो घर में कुछ ऐसा उनके साथ हुआ हो जिसका इफेक्ट वो यहाँ पर आ रहा हो, बट ऐसे टाइम में बहुत जरूरी है बी नाइस विद पीपल। आपका जो उस समय का जो बोला हुआ, जो उस समय का किया हुआ एक्शन है, वो उनको जिंदगी भर याद रहेगा, और वो उसी एक्शन को फॉलो भी करेंगे कि मैंने ऐसे बिहेव किया बट उन्होंने अपने आप को नहीं खोया और मेरे को भी चेंज कर दिया और मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी ला। डोंट पहली बात तो डोंट रिलाई ऑन आउटसोर्स सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी। आप बाहर के सोर्स की पॉजिटिविटी पे बिलीव मत करिए, खुद की पॉजिटिविटी पे बिलीव करिए, क्योंकि आप हो और आप जैसे हो वो कोई नहीं है। यू आर यूनिक, नो वन कैन बी लाइक यू, नो वन कैन बी लाइक यू। और जो आप कर सकते हो दूसरों के लिए वो कोई नहीं कर सकता। आपके उस जगह पे आप ही हो जो उनको सही भी कर सकते हो, आप ही हो जो अपने व्यवहार से, अपने एटीट्यूड से, अपनी लैंग्वेज से उनको हर्ट भी कर सकते हो। सो सराउंडिंग पीपल होने का आपका बेस्ट है कि पहली बात तो नंबर 1 अपनी लैंग्वेज और अपनी टंग पे कमांड रखिए। बी नाइस विद अदर पीपल, डोंट रिलाई ऑन आउटसोर्स पॉजिटिविटी, क्रिएट हाई पॉइंट्स इन ईच डे एंड वीक। टास्क दे दीजिए टास्क उनको, आज का टास्क ये है, डू इट इन योर वे, लेट्स सी व्हाट आर यू डूइंग। काम दीजिए, जैसे हम कहते हैं पढ़ाई में भी कि जो सबसे शैतान बच्चा होता है उसको डिसिप्लिन इंचार्ज बना दो, फिर देखो क्या होता है। फिर तो वो ऐसा काम करता है कि मतलब आप दंग रह जाते हो कि वाओ, ये वो बच्चा है जो इतना ज्यादा इनडिसिप्लिन था और वो पूरे स्कूल को डिसिप्लिन सिखा रहा है। So yes, ma'am. I use this strategy with my young boy. Means my son is so naughty, and I oftenly use this strategy to keep him in the disciplined way. So it really works, ma'am. Whenever we give the assignments to others, and specifically the positive assignments, it really works. It really works, ma'am. और उनको एक चीज जरूर बताइए उस समय ऐसे माहौल में कि आप बेहतर हो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। आप बेहतर हो, मैं नहीं कह रहा कि आप गलत हो या आप कुछ गलत कर रहे हो। बेहतर हो, बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर तलाश करो।
मिल जाए नदी तो समंदर तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। दिस इज सच ब्यूटीफुल लाइन जो अपने आप में एक मैजिकल इफेक्ट क्रिएट करती है। एंड इवन आई ऑलवेज बिलीव इन दिस फैक्ट, दरिया अगर मिले तो समंदर की तलाश कर। और कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ कि हम सभी में एक ड्रीम, एक कुछ कर गुजरने की जो चाह होती है वो बनी रहे, तो डेफिनेटली ऑप्टिमिज्म हमारे अंदर अपने आप ही आ जाएगा। पर अगर हम जीने के प्रति एक सपना, जीने के प्रति एक उत्साह को कहीं खो चुके हैं, तो फिर हम ऑप्टिमिज्म कहीं से नहीं ला सकते हैं। ऑप्टिमिज्म सिंपली इज द वे ऑफ लिविंग इन अ वेरी हेल्दी वे। मीन्स इट्स हेल्दी इन दैट वे कि हमारे मन को खुश रखना उतना ही जरूरी है जितना कि हमारे तन को स्वस्थ रखना। अगर तन स्वस्थ है और मन खुश है तो यकीनन हमें एक अच्छी हेल्दी लाइफ जीने से, हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ जीने से कोई नहीं रोक सकता है। और जैसा कि मैं हमेशा से इस चीज में यकीन रखती हूँ कि हमारी जिंदगी का अल्टीमेट गोल खुशी है। हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट गोल। चाहे हम किसी भी तरीके से उस तक पहुंचते हैं, पर हमारी सबकी मंजिल एक ही है, खुश होना, खुशी पाना। तो कहीं ना कहीं अगर हम खुश और होना, खुशी बांटना, एग्जैक्टली मैम, मेरा अगला शब्द यही था कि अगर हम सभी हाँ। लोग खुशी पाना और खुशी बांटना सीख जाएं तो 101% कोई भी ऐसा नहीं होगा जो खुश नहीं होगा। एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है, जब एक स्कूल में एक एक्टिविटी कराई जा रही है, काफी सारे बलून्स वहां पे एक रूम में फुला के रखे हुए हैं। उन सभी बलून्स पे उस एक क्लास के सारे स्टूडेंट्स का नाम लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 7th क्लास के सभी स्टूडेंट्स का नाम उन बलून्स पे लिखा हुआ है, और वो बलून एक रूम में कहीं पर पैक हैं। और जब वो रूम का गेट खुलने वाला है तब उनके टीचर ने उन्हें कहा है कि आप लोग सभी अपने अपने नाम के बलून ढूंढेंगे अंदर जाके। ठीक है। जब इसमें दो इवेंट्स हो रहे हैं, एक में टीचर ने ऐसा बोला है, दूसरे में भी टीचर ने ऐसा ही कुछ बोला है। बट जब वो पहला वाला दरवाजा खुलता है उसमें बहुत सारे बलून सबके नाम के साथ वहां रखे हुए हैं। तो यकीन मानिए कोई भी बच्चा अपने नाम का बलून नहीं ढूंढ पाता है, क्योंकि बलून है, अगर आपके नाम का नहीं है और उसको आपने बिल्कुल केयरफुली नहीं रखा है तो वो बर्स्ट हो जाएगा। तो सब अपने नाम को ढूंढने के चक्कर में पता नहीं कितने बलून बर्स्ट कर चुके हैं। उसी तरह से जो अगले रूम में, जो कंट्रोल ग्रुप हम जिसको कहेंगे, अगले रूम में भी ऐसा ही कुछ चल रहा है। पर अगले रूम में बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है, क्योंकि अगले रूम में जो जिसके हाथ में बलून आ रहा है वो जिसके भी नाम का है वो उस नाम के स्टूडेंट को ले जाके दे रहा है। तो हमारी खुशियां हम तक पहुंच जाएगी अगर हम दूसरों की खुशियों का ख्याल रखेंगे। यकीनन हमारी खुशियां कहीं ना कहीं यही है, पर हम क्या कर रहे हैं, अपनी खुशी पाने के और ढूंढने के चक्कर में औरों की खुशियों को खत्म कर रहे हैं। तो अगर हम जो दूसरे वाले ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की तरह करें कि जिस नाम का बलून हमारे हाथ में आया हम उस व्यक्ति को ढूंढ के उसको वो बलून दे दें, तो उसी पल, हो सकता है उस बलून को देने से पहले ही हम तक कोई हमारे नाम का बलून लेके आ जाए। वेरी करेक्ट। तो खुशियां बांटने से बहुत बढ़ती है। और जैसा कि मैंने अपने क्वेश्चन में पूछा था कि अगर हम नेगेटिव लोगों से सराउंडेड हैं तो कैसे पॉजिटिव रहेंगे, तो बहुत ही उम्दा तरीके से आपने कई चीजों को बता के इस आंसर को बहुत ही बेहतरीन बना दिया है। और मेरे को यकीन है कि कहीं ना कहीं जो भी हमें सुन रहे हैं वो अगर इन चीजों पे अमल करते हैं, अगर इन सारी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली पॉजिटिविटी तो कहीं नहीं जाएगी। बिकॉज जैसा कि आप और मैं और कहीं ना कहीं सारे ही लोग ये मानते हैं कि पॉजिटिविटी हम ही जनरेट करते हैं। एंड इफ वी आर द क्रिएटर ऑफ ऑल दीज इमोशंस, सो हु कैन स्टॉप अस। एक कॉर्पोरेट सेक्टर में जब एक दिन सारे लोग ऑफिस पहुंचते हैं तो वहां नोटिस बोर्ड पे लिखा होता है आपका अपना एक कोई अपना गुजर गया है, और वही आपकी जो सक्सेस है उसमें बाधक था। तो सारे लोग बड़े हैरान हो जाते हैं कि आज कौन ऐसा चला गया है। तो उन्हें कहा जाता है कि आप लंच के बाद नीचे अंडरग्राउंड वाले फ्लोर पे जाएंगे और देखेंगे कि कौन गया है और आप अपनी श्रद्धांजलि देंगे। तो जब वहां एक कॉफिन पड़ा होता है सभी लोग बहुत सरप्राइज हो जाते हैं कि ये कौन ऐसा था जो हमारी सक्सेस में बाधक था और आज वो चला गया है। और जब कॉफिन खुलता है तो उस कॉफिन में मिरर लगा हुआ होता है और सब अपना अपना अक्स देखकर चौंक जाते हैं
कि हमारी सक्सेस, हमारी सफलता में बाधक एक व्यक्ति है और वो है हम खुद। और हमारी पॉजिटिव इमोशंस को एनकरेज करना, अपलिफ्ट करना भी हमारे हाथ में है। पर कई बार हमें पता होता है कि हमारी जिंदगी में अच्छे पल आने वाले हैं, पर हम उस चीज को मानते ही नहीं है। हम पास्ट की उन सारी गतिविधियों में रह जाते हैं जो हमें कहीं नहीं ले जाती है। तो पास्ट में रहने से अच्छा है या फ्यूचर की ज्यादा चिंता करने से अच्छा है, मैं सबको यही कहना चाहूंगी, एक पीस ऑफ ओपिनियन के तौर पे, प्रेजेंट में रहना बहुत जरूरी है। अगर हम वाकई में पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो प्रेजेंट में रहना बहुत जरूरी है। मैम, मैं अगला सवाल जो आपसे पूछना चाहूंगी वो बहुत ही खूबसूरत सवाल है और मैं भी जानना चाहती हूँ, आप अपने आप को 3 शब्दों में डिस्क्राइब कीजिए। वैसे तो 3 शब्द बहुत कम हो जाएंगे मैम, पर फिर भी हम ये समझ लीजिए कि ये एक बहुत प्यारी सी आपके लिए पजल है कि सिर्फ 3 शब्दों में अगर आपको डिस्क्राइब करना है खुद को तो आप क्या करेंगी? Okay, I am cheerful, Wow, dedicated, you are and compassionate. And compassionate. beautiful, beautiful, ma'am. Amazing. And I totally agree with these beautiful words. You are compassionate, you are dedicated, and you are, the first thing you said as Cheerful. cheerful. आपको देख के कोई भी कह सकता है मैम, आपको कहने की भी जरूरत नहीं है, यू आर cheerful. Beautiful, मैम. अगर हम अगले सवाल पर चलें, your inspiration in life other than your family, कौन एक ऐसा व्यक्ति है या ऐसा व्यक्तित्व है जिसने आपको अपनी जिंदगी में आपके परिवार के अलावा इंस्पायर किया है? Okay, परिवार के लिए तो मैं तो हमेशा बोलूंगी कि मेरे, क्योंकि परिवार के अलावा आपने बोला है, बट इसके बावजूद मैं परिवार के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर का नाम जरूर यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी, एंड वो है मेरी मदर इन लॉ। वाओ, शी मोटिवेटेड मी लाइक एनीथिंग। जब मेरी शादी होके गई, जब मैं शादी होके उनके पास आई, शी वाज वर्किंग एज अ प्रिंसिपल। शी वाज वर्किंग एज अ प्रिंसिपल इन या, एंड मैं डेली उनको देखती थी तैयार होके जा रहे हैं, और उसके बाद जिस तरह वो तैयार होके जा रहे हैं, टाइट सा जोड़ा, कलप की हुई साड़ी, वो जो उनको देख के जो मेरे अंदर जो आता था कि आई वांट टू बिकम दैट। तो शी इज माय ग्रेट इंस्पिरेशन इन माय लाइफ। कि मैंने उसी समय सोच लिया था कि पढ़ाना तो ऑफ कोर्स मेरा, टीचिंग इज माय पैशन, बट वो मेरा एक ड्रीम बन गया था कि आई विल सिट ऑन दैट चेयर, I will become principal. I will sign with my green pen. वाओ। And मम्मी के अलावा जो मेरी जिंदगी में तो मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर करते हैं वो है मिस्टर APJ अब्दुल कलाम। So true. So Mr. APJ Abdul Kalam is my greatest inspiration. With all these 5 values which he told whole world, that is be prepared. हमेशा तैयार रहो, चाहे वो वर्स्ट हो चाहे वो बेस्ट हो, बी प्रिपेयर्ड। नंबर 2, बी करेजियस एंड थिंक डिफरेंटली। बी करेजियस एंड थिंक डिफरेंटली। नंबर 3, बी हम्बल, ऑलवेज बी हम्बल। नंबर 4, हैव अ गोल। गोल नहीं है तो जीने में मजा क्या है? बिल्कुल। एंड नंबर 5, कनेक्ट विद पीपल। I follow all those 5 values which he inculcated in all over the world, and I especially follow all those things whatever he told to us. He is my great inspiration actually. Indeed, ma'am, indeed. I too follow Kalam sir. He is an amazing inspiration. He inspired the way that today each and every student can even, उनका नाम सुन के ही एक अंदर से पॉजिटिव स्पार्क क्रिएट होता है। इतना ग्राउंडेड होना, इतना एक डिग्निटी, इतना मॉडेस्टी के साथ अपनी सारी चीजों को करते थे। He is really an inspiration to each of us. So ma'am, when we are in the last 5 minutes of today's session, what is that message you want to give to each of us, to everyone who is listening to us? Although ma'am, ये जो पिछले 55 minutes हमने conversation किया, मुझे लगा अभी 5 मिनट ही हुए हैं। Very correct मैम, पता ही नहीं चला। Absolutely ma'am, it was beautiful conversating with you, beautiful insights आज आपने हमको दिया है। बट जब हम लास्ट 5 मिनट्स में हमारे सेशन के,
तो मैं चाहूंगी कि एक मैसेज जो आप हम सभी को देना चाहेंगी, प्लीज ओवर टू यू मैम। Yes, ma'am. Number one, always believe in yourself. Always believe जी। in yourself. Love yourself. Trust your God. भगवान पे विश्वास रखिए, वो जो कर रहा है अच्छे के लिए ही कर रहा है। अगर वो आपकी चीज को मूव कर रहा है तो आपके भले के लिए ही कर रहा है। अगर वो कुछ भी कर रहा है जिंदगी में तो उसने कुछ प्लान करके रखा है आपके लिए। सो ट्रस्ट ऑन योर गॉड, ही इज ऑलवेज विद यू। और गॉड की बात होती है तो एक बहुत ही प्यारा सा गाना है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, जो मैं बहुत सुनती हूँ जब भी कुछ भी मुझे अच्छा लगता है कुछ सुनने के लिए, बिकॉज आई लव टू लिसन म्यूजिक एंड ऑल। सो इट्स लाइक दैट, ये मत कहो खुदा से तेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुम्हें गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से तेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। एक और लाइन इसमें है, हिम्मत से कदम बढ़ाओ आगे ही चलते जाओ, हिम्मत से बढ़ते जाओ आगे कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाए वो साथ में खड़ा है, साथ में खड़ा है। ये मत कहो खुदा से तेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। जब कभी ऐसा माहौल आए कि आपको लगे आप कुछ नहीं कर पा रहे, छोड़ दीजिए उन पर, वो हल कर देंगे आपकी सारी मुश्किलों को और आपको एक नए तरीके से तैयार करके एक नए समाज में आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, दैट्स माय मैसेज। That was superb, मैम, that was incredible. मैं तो मंत्रमुग्ध हो गई थी आपको सुन रही थी इस तरह से, and your each and every word was kicking. Each and every word of your song was like such a energetic word कि सच में हम अक्सर हमारी मुश्किलों को गिनते हैं, और पॉजिटिविटी या पॉजिटिव पर्सन यही कहता है कि डोंट फोकस ऑन प्रॉब्लम्स, फोकस ऑन सॉल्यूशंस। अगर हम प्रॉब्लम्स पर फोकस करेंगे तो यकीनन हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, और अगर हम सॉल्यूशंस में फोकस करेंगे तो यकीनन हमें ज्यादा सॉल्यूशंस मिलेंगे। एज साइकोलॉजी सेज, व्हाट यू फोकस ऑन ग्रोज। हम जिस चीज पर फोकस करेंगे वो ग्रो होगी। तो यकीनन आपके ये शब्द हमारे मन में बहुत बहुत पॉजिटिविटी का संचार कर रहे हैं, और मैं यकीन करती हूँ, मैं मानती हूँ कि इस तरह से हम आपको बार बार बुलाएंगे और हमारी ऑडियंस आपको बार बार सुनना चाहेगी। सो इट वाज ग्रेट हैविंग यू मैम on this platform, and I must say again and again, this is our platform and this is we who can bring a change in the society. So those who come here and speak and give their valuable insights to the audience, I must say you all are the make a difference people. You all are the change makers. So I'm again very much thankful to you to be here and give insight to all these audience. So thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you, Priyanka ma'am. Thank you so much. Thank you. Bye bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, all of you.